all for sparing your valuable time. I hope I'm audible to everyone. Yes, I'm audible. Okay. So I would like to thank you all. I would like to welcome you all to this webinar. I would like to thank you for sparing out your time and being a part of this webinar. Also, I would like to tell you that today we are really fortunate. The reason why I'm saying that today we are really very fortunate because today, very soon, we'll be having our Honorable Director Sir, our very own Rupali ma'am, our respectable Principal ma'am is already here, and CEO Mr. Pancham Bhadia of our school is also here. So I would also like to tell you all that this session is not going to be a theater kind of session. Like we'll be just presenting and you'll be just listening. It won't be going to that. ऐसा नहीं होने वाला है. Rather, it is going to be a very interactive session where at the end of the talk by our psychologist, Dr. Savita Singh, there will be a question answers round in which you can ask your question, whatever queries, whatever concerns you are having, you can ask after the talk by the ma'am. You can send your queries in the chat option and I'll deliver it. I will share it with ma'am. Okay. So on behalf of Holy Child Public School in association with Sarvodaya Healthcare, a hearty welcome to everyone. I know that, as you all know, that we are here with a similar thought-provoking question in our mind that how to raise our children, what all parenting strategies do we have to adopt in these uncertain period. In today's webinar, parents, we will be focusing on parenting strategies so that you can support your children better during these unpredictable, uncertain time period, especially when you yourself are experiencing more shrine of emotions than usual. We know that parenting is very difficult. It is very tiring and you are working really hard. Every day you are really working hard and we really commend you for that. And still in the midst of all, you have taken out the time today to tune in into this webinar on the topic parenting in the uncertain time. I would like to say that this pandemic has brought an increased set of challenges for parents who not only have to manage their work, but also they have to pay constant attention to their children, right from monitoring during online classes to engaging them into some kind of outdoor, indoor games, physical activities. So parents are constantly looking for venues to channel the energies of their children in a more constructive way. We recognize that each one of you have your own set of circumstances. Some of you may be juggling a lot between maintaining a balance between parenting and working from home, or there are parents who have lost their jobs and they really have no idea how to adapt with this uncertain, unexpected financial crisis. We also know that there are parents who are at present who are outside their home, they are working, they are serving for the community, and the first question that comes to the mind at that time is how to keep our family safe. I guess parents are relating because this is the only thing that इस सब के बीच में अपने फैमिली को कैसे हमें सेफ रखना है. This is the only question that we are really concerned about. And we know that parents, you are really trying hard to understand the need of the child, but as you know that it is not always easy to figure out the emotional and behavioral needs. So today, more about this. Now, Ritu ma'am will tell you about this. So over to you, Ritu ma'am. Good evening, everyone. So we are fortunate enough to have Dr. Savita Singh with us today,
who is clinical psychologist and consultant in holistic medicine. She has done her MPhil in clinical psychology and PhD in psychology. She is also a postgraduate diploma holder in yoga and meditation and a diploma holder in skin and hair disorder. Dr. Savita Singh has also received a degree in naturopathy and yoga. She is the master of Reiki third degree. A warm welcome to you, ma'am. We really feel honored and blessed to have with you us today. Now I will request our Honorable Principal, ma'am, Ms. Vandana Bhatia, to accord a formal welcome. Ma'am, the screen is all yours. Good evening, everyone, and thank you, Ritu, for giving me time to speak a few words. And I would like to say thank you to all the participants, to all the parents who have spared their time and to be with us today. And that's how Akanksha started, because most of the parents are having the similar wavelength. But yes, the topic today is parenting in uncertain times. So if we have the times are uncertain, but we have people who are very, very certain. And for that, I would like to say thank you to Sarvodaya Healthcare that we have renowned holistic medicine in charge, Dr. Savita Singh with us. So heartiest congratulations and heartiest welcome to Dr. Savita. Thank you for sparing your time, ma'am. Thank you so much for being with us. See, uh, the times are new for all of us. And that's why the times are being called the uncertain time. But if in this uncertain time, we have people who can guide us, who can tell us, show us the path that where to go, how to go about, that's going to be a learning for all of us and for all the parents. Because I've been meeting parents for quite a long time. Every parent has got a different set of problems. But if we go into the core deep value of that problem, or I'll not use the word problem, it is a challenge basically. And if we go to the deep root of that challenge, it remains the same. But one way I would differ from Akanksha, she said, parenting is very tiring. That's what I noted. No, I'll say parenting is very enjoyable. It's very, very dynamic feeling. And if we have that positive attitude that yes, in this challenging time, we are getting more time for our families. We are, of course, it is challenging. It is tiring, but yes, if we take it in that positive stride, that yes, this type of time I'm going to give to my children, it's going to help in the holistic growth of my child. Otherwise, all of us were having our own races, our own lives. Imagine when the pandemic began in the last week of March, in the first week of April. Of course, all of us were very afraid. All of us were sitting at home. We were taking a lot of precaution, but all of us, all over India, all the social medias were flooding with kind of family time we were having. That's how we started enjoying that family time. Of course, as the time is passing and nobody knew it's going to stay there for 6 months, and for how long, nobody knows. But if we take this situation as a stepping stone for building up a good future for our children, that will be fruitful experience. And then after some years, we'll be telling these tales to our grandchildren and the next generations that yes, we had pandemic in the second decade of 21st century. So that's it. So for that, if we get some expert guidance, we are fortunate enough. So Dr. Savita, we are eager to listen to you. And my dear parents, I would really appreciate if you put your questions in the chat box so that host can take those questions and they can be answered by Dr. Savita. So Dr. Savita, thank you so much for sparing your time, and we are all eagerly waiting to listen to you. Thank you so much, ma'am, and welcome again, ma'am. Thank you. So much. First of all, मैम जैसे आपने बोला कि वंदना भाटिया। अच्छा, वंदना भाटिया मैम। तो वंदना भाटिया मैम, आप सबसे पहले जो आपने बोला कि पेरेंटिंग जो है वो टफ नहीं है, आई एग्री, आई कन्विंस्ड ऑल ऑफ यू। अभी सभी लोगों को ब्रेन में समझना चाहिए कि पेरेंटिंग सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल, एक मदरली भी और एक फादरली भी और एक पूरा वर्ल्ड वाइड जिसको हम कहते हैं,
कि उसी से हम लोग प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, अगर यहाँ हम कहते हैं एनर्जीज को हम यहाँ ला पा रहे हैं, मदरहुड या पेरेंटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, बट पहला एक मैं सबके ब्रेन में एक वॉश जिसको हम कहते हैं ना, एक ब्रेन वॉश के लिए, कि दिस टाइम इज नॉट अनसर्टेन, लाइफ इज अनसर्टेन, लाइफ टोटल अनसर्टेन है। तो ये टाइम अनसर्टेनिटी की अभी जस्ट हम ये बोल रहे हैं क्योंकि ये सब बोल रहे हैं, कंडीशनिंग बोल रही है कि ये टाइम अनसर्टेन है, बट हर पर्सन का जब से वो पैदा होता है और जब तक वो प्लेनेट पे रहता है, टेम्परेरी है हम, ये हमें जानना पड़ेगा। सॉरी टू से, बट ये सीरियसली मुझे इस बार, अब मुझे जब से ये पैंडेमिक आपने बोला तब से, जब से शुरू हुई है चीजें, लोग आगे से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मुझे बताने के लिए ये एक, जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा एक मौका मिल गया है मुझे, या मुझे कहते हैं टाइम बड़ा अच्छा मिल गया है कि मैं सबको बता पाऊं कि राइट इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गैदर करना चाहिए, जो ऑलरेडी हमारे पास्ट में हमारे पास गैदर्ड थी, बट विद टाइम हम उसको इरेज करते गए, डिलीट मारते गए, और अभी हम लोग सिर्फ एक ऐसा लगता है कि बस हम हैं इटर्नल, हम लोग यहाँ हैं इस प्लेनेट पे, बट हम लोग बहुत टेम्परेरी हैं। तो ये हम ऑलरेडी हम अनसर्टेन सिचुएशन में हैं इस प्लेनेट के ऊपर। तो थैंक यू पहले तो कि आपको जैसे हम कहते हैं पेरेंटिंग, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो मैं आप ही से पूछ रही हूँ, एक तो ये है कि हम फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल प्लेटफॉर्म और फॉर्मल क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, एक ओरिजिनल जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट जिससे हम कहें कि फ्रूटफुल हो सकता है। तो दो सिचुएशन है जिसमें भी आप मुझे अलाउ करोगे, मैं उसी फेज में चली जाऊंगी। As we want to get the maximum fruits from this. So it's all yours and we are comfortable with everything. Done. ठीक है मैम, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका इम्पोर्टेंट बात है कि पेरेंटिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंटिंग वर्ड से ही शुरू हो जाता है कि हम ये बोलते हैं कि टफ या हम इजी या हम कुछ भी समथिंग समथिंग, ये टाइम या कोई भी टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा पेरेंटिंग इमीडिएट शुरू हो जाती है आपसे। आप यहाँ राइट इंफॉर्मेशन फिर वर्ड यूज करूंगी कि दो लोग हैं जिन्होंने एक प्रोडक्ट को डिलीवर किया है, एक मदर है एक फादर है, सो कॉल्ड उनके नाम है, ये मदर है, इसको हम फीमेल को मदर बोलते हैं और मेल को हम फादर बोलते हैं। इन दोनों के एग और स्पर्म जिसको हम बोलते हैं, उनसे हमने एक प्रोडक्ट को डिलीवर किया है। तो जिसका जो प्रोडक्ट यहाँ से आया है, तो इसको हम बोलते हैं, पहले एक सिंपल वर्ड में हम करते हैं कि नो योरसेल्फ, पहले आप खुद को जानो। तो पेरेंटिंग या कोई भी सिचुएशन या कोई भी पर्सन आपके लिए इजी हो जाएगा, नॉट चिल्ड्रन। फिर वो चाहे वो जैसे आपका अपनी एक टीम है, अगर आपको अपने ऊपर फेथ है तो नेचुरली वो बहुत स्मूथ जाने वाला है आपका जो भी चीजें हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मैं इक्वली मेरा डिसॉल्व कर देती हूँ खुद को कि आपकी सिचुएशन में आप मुझे जो डिमांड कर रहे हैं मैं उसी तरह से डिलीवर करूंगी, क्योंकि मेरा अपना पार्ट नहीं है यहाँ। जो आपको इजी लग रहा है, जो आप पूछना चाह रहे हैं, जिससे आपका कुछ, या जो भी पेरेंट्स हैं जो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं वो यूज करूंगी रेदर देन इसके कि मेरी नॉलेज है, मेरे पास कितना कुछ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मुश्किल से 5 मिनट पर डे, जो मॉर्निंग का सुबह का शुरू होता है, अभी से आप बैठना शुरू करें अपने पास और ये जानना शुरू करें कि मैं कौन हूँ। जैसे मैं शायद पहले भी कई टॉक्स में बोल चुकी हूँ कि जब हम अपने आप को जानते हैं तब हम बच्चों को जानते हैं। अगर मैं ये मानती हूँ कि मेरा ये बिहेवियर है, सेट एक पैटर्न होता है हमारे बिहेवियर का, और इसके फादर का ये एक पैटर्न बिहेवियर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलमोस्ट 25% ही होता है, मिनिमम पोर्शन होता है, बट मोस्ट ऑफ द लोग या 99% लोग, हम लोग अभी उसी शेल से बाहर नहीं निकलते। तो हम ये बोलते हैं हम ओरिजिनल सेल्फ को तो जान ही नहीं पाते, जो हम ओरिजिनल इंडिविजुअल एनर्जी आती है उस तक तो हम पहुंचते ही नहीं है। अभी हम इन्हीं दोनों में फिजिकल, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल फॉर्म में ही हम अटक के रह जाते हैं, या हम कहते हैं फिजिकल फॉर्म में ही हम स्टक हो जाते हैं। क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो मैं हूँ, जैसे एक एग्जांपल से सेट करते हैं कि कोई भी मटेरियल है या कोई मेटल है, अगर आप जिस मेटल को लोगे उसी का मेल्ट करके कुछ चीज बनाओगे तो क्या वो दूसरा मेटल का हो जाएगा? एग्जैक्टली। तो ये तो बहुत ही मतलब सिंपल साइंस है
कि जो मेरे थ्रू बना है तो बॉडी मेरे थ्रू बनी है, किसी भी बच्चे का बॉडी मेरे थ्रू बनी है, वो एनर्जी टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। तो इसको हम बोलते हैं जो बॉडी है, जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है, वो ऑलवेज पेरेंट्स का होगा। जो उसकी एनर्जी है वो टोटली डिफरेंट एक एंटिटी है, वो डिफरेंट एंटिटी है, वो डिफरेंट उसके कर्मा जिसको हम बोल देते हैं, डिफरेंट टास्क बोल देते हैं, या डिफरेंट डिजायर बोल देते हैं। तो वो अपनी एक डिजायर लेके आया है। तो मैम सबसे पहले मैं सबसे थोड़ा सा अभी जितने भी लोगों ने अभी तक टॉक्स के जितना थ्रू मीडियम जो भी आपने लिया होगा, मैं टोटल डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ले जा रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइट इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं कौन हूँ मीन्स हम बीइंग कौन है। तो हम एक टोटल एक मैकेनिज्म है हमारे बीइंग का। तो जैसे जब बोलते हैं कि जब हम खुश होते हैं कि इसकी आईज आपके ऊपर गई है, नोज उसके ऊपर गई है, तो जब आपके लिए भी जैसे आप पेरेंट्स बैठे हैं तो आप ये देखोगे जो पेरेंट्स से आप आज अभी से आप देखेंगे तो उसी का रिपल का जिसको हम कहते हैं ना, बच्चे का कुछ ना कुछ सेट ऑफ पैटर्न वैसा रहता है। बट क्योंकि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि मेरा बच्चा थोड़ा, जैसे मैं साइको हूँ है ना, तो मैं क्या अभी मैं अपने बच्चे को ऐसे देखूंगी ये तो बड़ा रैंडम है, ये तो कुछ भी कर रहा है, तो मुझे उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बट मैं खुद को देखती हूँ अगर, तो इमीडिएट में ईज हो जाती हूँ कि हाँ मैं भी तो बहुत ही रैंडम अनसर्टेन, जिसको आपने बोला कि मेरा कोई सेट एक रूटीन नहीं है कि मुझे अभी यही करना है। अब जो इनके फादर हैं, अगर मैं अपनी स्टोरी से ले रही हूँ, उनका बहुत ही सटल बिहेवियर है, रूटीन जिसको हम कहते हैं 9 to 5 वाला। तो कुछ पोर्शन अगर दो बच्चे हैं तो कुछ एक में जिसको हम कंपैरिजन में ले जाते हैं, कई बार दो बच्चों में, अपने ही बच्चों में कंपैरिजन में चले जाते हैं। तो एक हो सकता है कि एक बच्चे में सेट ऑफ पैटर्न मदर का आ गया हो, एक बच्चे में फादर का आ गया है। अब उन्हीं दोनों में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो अगर ये कहें तो फिर तो हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ही दूसरे को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द फैमिली या मोस्ट ऑफ द कपल्स में यही होता है कि तुम मेरी बात नहीं समझते, वो कहता है तुम मेरी बात नहीं समझते। तो जब मैं अपने उस बच्चे को देखूंगी जो कि फादर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी कि वो जो दूसरा मदर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं अननोइंगली उससे लाइकिंग में मेरा डिफरेंस आ जाएगा और मैं अपने ही घर में पेरेंटिंग को डिफिकल्ट कर लूंगी। तो यहाँ सिंपल सी साइंस है कि जिस दिन भी जब भी आपको लगे कि डिफिकल्ट हो रहा है बच्चों के लिए, तो आप बैठ जाएं और आप सर्च करें। और जैसे ही आप अपने आप में सर्च करेंगे, इमीडिएट आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो अभी आप एक मैच्योर फ्रेम में आ गए हैं, आपने बहुत सारा लाइफ एक्सपीरियंस ले लिया है, आपने बहुत सारा डीलिंग एक्सपीरियंस ले लिया है। तो वो एक्सपीरियंस आप अपने लिए यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो विजुअलाइजेशन उसका चल रहा है, जो उसका पैटर्न देख रहा है वो पेरेंट्स का बिहेवियर का, वो विदाउट एनी सेइंग, मतलब वो आपको कोई वर्ड्स की जरूरत ही नहीं है, वो अडॉप्ट करता जाएगा, क्योंकि वो तो रिसीवर है अभी। अगर हम 8 साल की बात करें, 1 to 8 ईयर, तो वो टोटल रिसीवर है, उसका अपना कोई चीज ही नहीं है। आप उसमें 100% चेंज कर सकते हैं, नॉट ओनली बिहेवियर में, आपका चाहे वो मसल्स है, अगर आप कुछ भी फैमिली में जो इनटेक है वो भी चेंज करते हैं, तो वो फिजिकली भी अगर आप कुछ चेंज करते हैं तो वो मेंटली स्पिरिचुअली जिसको हम कहते हैं, वो टोटल पर्सन चेंज हो जाएगा अगर आप जैसा चाहते हैं। आपकी फैमिली में जैसे हम अभिमन्यु की बात कर रहे हैं कि जब अभिमन्यु उनके वोम में था तो वो आधा उसने लिसनिंग उसने करी थी चक्रव्यूह की, तो ये साइंस ऑलमोस्ट प्रूव कर चुकी है कि ऐसा पॉसिबल है। जब वोम में बच्चा है तो मदर का जो भी मेंटल स्टेट है, जो भी सिचुएशन है, वो मैटर करती है। बट अगर वहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स, वहां वॉमिटिंग है, अनीज है, कुछ भी है, उस वक्त नहीं कर पाए, फिर से आपके पास एक चॉइस है 8 साल। तो ये बहुत बड़ा टाइम है। अगर उसके बाद भी नहीं कर पाए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने पे काम करना है और ऑटोमेटिकली बच्चे के पास जाता जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक और कैटेगराइजेशन करूंगी कि यहाँ फिजिकल और मेंटल, ये आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस में इजी हैं। 2 पाथवेज हैं, एक मेंटली आप जा सकते हैं, एक फिजिकली जा सकते हैं। मुझे अपने बहुत सारे पेशेंट के एक्सपीरियंस से समझ में आया कि फिजिकली मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए इजी है,
जैसे मैं अगर हाथ ऐसे कर रही हूँ तो विजुलाइज हो रहा है, तो ये इजी है। मेंटली मैं कुछ फ्लक्चुएट कर रही हूँ तो इजी नहीं है, देखना नहीं, क्योंकि आईज हमारी देख नहीं पा रही है। तो यहाँ फिजिकली अगर हम स्टार्ट करें तो आपकी हैप्पीनेस जो है वो आपको एक चार्म क्रिएट करती है या फोर्स क्रिएट करती है, जिससे कि आप कुछ चेंज के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप अगर मुझे अलाउ करें तो सबसे पहला तो यही है कि आप अपना इनटेक, जिसको कहते हैं, आपने इसमें से क्वेश्चन भी पूछा है शायद इम्यूनिटी बूस्ट के लिए, तो इम्यूनिटी इज ऑल्सो अ फिजिकल स्टेट कि आपका बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। बट उसके लिए आपको नॉट मतलब केवल आपका फूड ही उसमें कंप्लीट नहीं है, उसमें आपका अपना सेल्फ भी जज करना पड़ेगा, जो हम सब कुछ लैक कर रहे हैं। आज की डेट में बहुत सारे लोग काढ़ा पी के डैमेज हो रहे हैं, उनका लीवर, किडनी, या उनको हेडेक, या उनका हीट डेवलप हो रहा है अननेसेसरली। वो अपनी, जो हम इसको प्रकृति बोलते हैं, अपने आप को अगर हम जानते नहीं हैं तो हम अननेसेसरली वो फूड खा रहे हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अगर इनिशियली स्टार्ट करें तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फिजिकल स्टेट के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि उसकी हमारा जो फर्स्ट, जब हम डे का स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, नाइट, रात। हमारा रात कैसा है, जैसे कहते हैं डार्कनेस से चलें, हम उल्टे चल रहे हैं, बजाय हम लाइट के हम डार्कनेस से चलते हैं। डार्कनेस मतलब मुझे अपनी वीकनेस से चलते हैं कि मुझे अपनी वीकनेस पे काम करना है, जो मेरा प्लस है वो तो प्लस है ही। अभी हमें जो डार्क है हमारा, जो हमारी वीकनेस है, हमें रात को बैठ के अपनी वीकनेसेस को देखना है। पहले तो ये आप समझिए कि जब आप देखेंगे तभी कुछ इम्प्रोवाइजेशन होगा ना। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपके फेस पे पिंपल है, राइट, जो मुझे दिखाई दे रहा है। मैम आपका नाम आकांक्षा, आपका नाम है शायद, यस, है ना। अब देखिए, जैसे मुझे आपके पास में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये रीडिंग है कि आपका नाम आकांक्षा है। उन्होंने 2-3 नाम बताए मुझे, डॉक्टर नवीन ने, लेकिन जब मैं आपको देख रही हूँ तो आपको रीड कर रही हूँ। और ये हम सब कर सकते हैं। और हम कब कर सकते हैं? जब मैं खुद के साथ खाली हूँ, मीन्स जब मेरा बोल खाली होगा तभी मैं उसमें कुछ भर पाऊंगी। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेरेंट्स का जो भी, चाहे वो फियर है, चाहे वो इनसिक्योरिटी है, चाहे वो इम्यूनिटी है, अगर उनमें नहीं है तो वो पूरे फैमिली में नहीं है। तो सिर्फ बच्चों में कर देने से नहीं हो पाएगा, वो आपके अंदर भी होगा। क्योंकि पर डे, आप एक बहुत ही अजीब सा एग्जांपल देती हूँ, वॉशरूम में आप जाते हैं तो वॉशरूम में आप नहा लिए, आपने अपना डेली रूटीन, अपना जो डेली आपका वो होता है वो आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने उसको वॉश कर दिया, आप बाहर आ गए, पर क्या उसमें बैठ के आप खाना खा सकते हैं? वॉशरूम में बैठ के कोई खाना खा सकता है? नो, है ना। तो इट्स अ थॉट ओनली, एक सिर्फ हमारा थॉट है कि अभी वहां सब कुछ साफ है। इवन हम अपने जो वॉश बेसिन का टैप है उसमें अपना बर्तन धोने के में भी थोड़ा कई लोगों को हिच आएगी। अगर कोई आप क्लीनिनेस के लिए आप अपना मग या कुछ भी वॉश कर रहे हैं तो आप ट्राई करेंगे कि आप किचन वाले उसमें वॉश बेसिन में जाते हैं, रेदर देन आप अपने पॉट के आसपास वाला वाटर यूज नहीं करते हैं। तो सिमिलरली अगर आप सिर्फ ऐसा करेंगे कि बच्चों को जो भी सो कॉल्ड हम कहते हैं नॉलेज या कोई भी परफेक्शन जिसको हम कहते हैं हेल्थ वाइज देंगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। थोड़ा सा मैं जिसको हम कहते हैं कड़वा, या हम कहते हैं जो एक्चुअल में फैक्ट्स है ना, उसके ऊपर बात कर रही हूँ। तो यहाँ पेरेंट्स को क्या लगता है कि बच्चों को सारा कुछ दे दें, बच्चों को परफेक्ट कर दें, बट वो कितना डिफिकल्ट है। जब वो खुद के ऊपर अपने परफेक्शन पे जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ पेरेंटिंग क्या होता है, फिर फ्रेंडली हो जाती है। क्योंकि जब मुझे पता है कि कंटिन्यूएशन में बोलना 2 घंटे टफ होगा, तो मैं फिर सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। तो पेरेंट्स को खुद की परफेक्शन पे जाना चाहिए, तो उनको उनकी वीकनेस पता चलेंगी, तो वो जो बच्चे हैं उनकी भी वीकनेसेस इसको जानेंगे और अपनी स्ट्रेंथ को भी जानेंगे। और जब पेरेंट्स अपनी स्ट्रेंथ को जानेंगे, उनकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और वो पॉजिटिविटी पूरे फैमिली में स्प्रेड होगी। और उनका एक जिसको कहते हैं ना, एक फोर्स डेवलप होगा, जो फोर्स बच्चों में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिसीवर हैं। अभी उनके लिए तो पेरेंट्स, टीचर, आप देखो कभी बच्चों को कि मम्मी ने बोला था, टीचर ने बोला था,
किसी मेच्योर पर्सन को कभी लगे नहीं ये गलत है, ये मैं ही सही हूँ, आई नो एवरीथिंग, उनका इंटरनली यही थॉट रहता है। आउटर फ्रेम में आप कह सकते हो थोड़ा पोलाइट बन के या जेनरस फॉर्म में आप कह देते हो ओके ओके, बट अंदर तो सोच रहे होते फालतू बोल रहा है मुझे पता है। पर बच्चों का ऐसा नहीं है, बच्चों का जो फेस पे है वही इंटरनल है अभी, क्योंकि अभी वो रॉ है, अभी उन्होंने पूरे वर्ल्ड की जो सो कॉल्ड कारीगरी जो है वो अभी उन्होंने इम्यून नहीं हुए हैं उससे, वो तो थोड़ा सा उनमें चेंजेस पॉसिबल हैं। तो पेरेंट्स को बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे मेरे बच्चों के साथ, मतलब मेरे दोनों बच्चे बोलते हैं कि आपको पेरेंटिंग के लिए ना बुक्स लिखनी चाहिए या सिर्फ और सिर्फ पेरेंटिंग पे काम करना चाहिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमें तो कभी कुछ लगा ही नहीं, लाइफ इतनी इजी लगती है, लाइफ इतना इंजॉयबल फॉर्म में रहती है कि हमें कभी लगता ही नहीं है, क्योंकि वो जो फ्रेम मेरे अंदर नहीं है, मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, तो वो फ्रेंड जोन बन गया है। अगर वो बच्चा, इवन मेरी बेटी और बेटा दो हैं ना, मुझे कभी ये प्रॉब्लम हुई कि रिलेशनशिप में जा रहे हैं या वो ड्रग्स ड्रिंक्स या सब चीज या समथिंग समथिंग जो चलता है जिसमें पेरेंट्स या बच्चा खाना नहीं खा रहा है या बच्चे का जो भी वो चूजी हो गया है, बच्चा नेट पे ज्यादा देर बैठ रहा है या बच्चों को जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। क्योंकि जब आपको लगता है, आप में से चाय कॉफी पीते हैं? चाय कॉफी पीते हैं आप में से कई? पीते हैं? तो अगर ये मना कर दिया जाए कि चाय मत पीजिए, तो आप, या आपको पता है हाँ कैफीन के बहुत सारे इश्यूज है, इवन सेरोटोनिन जो हमारे हैप्पीनेस का कॉज है, हमारा आयरन लॉस है, वो बहुत मैक्सिमम फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आपका बच्चा बोल रहा है कि आप अपने बच्चे को बोल रहे बेटा ये नहीं खाना चाहिए तुम्हें, ये जो भी जंक सो कॉल्ड ये अच्छा नहीं होता, तो वो भी मान रहा है, उसको पता है। बट अगर कहो कि बेटा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मुझे भी चाय छोड़नी है, चलो हम दोनों करते हैं, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लगेगा पर क्या ऑप्शन निकालें, हम उसके साथ बैठ के बिल्कुल उसको मेच्योरली उससे पूछें। मतलब हम जैसे कहते हैं ना एक मीटिंग या कॉन्फ्रेंस बच्चे के साथ करें, जब हम जैसे बड़े लोगों के साथ करते हैं कि बेटा मेरे से हो नहीं रहा है, कैसे करना चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, वो आपको भी हेल्प करेगा और वो अपने आप को तो ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा। बच्चा कभी पूछे जहां उसको नहीं जाना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है, तो उनसे उससे खुद से पूछो कि बेटा आप डिसाइड करो। आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ इतना सा कहना है आपका, वो खुद ही डिसाइड करेगा और वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको जैसे ही आपने मना किया उसकी सारी एनर्जी, सारा फोर्स, सिर्फ उसको ये एक एंगर डेवलप हुआ, जब आपने नो बोला तो एक जो एंगर डेवलप हुआ, जो अनईजीनेस डेवलप हुई, वो पूरा का पूरा उसमें पूरा जिसे कहते हैं ना डिप हो जाएगा, उस नेगेटिव इमोशंस में डिप हो जाएगा, और उसको अब अच्छा नहीं लग रहा, तो अब उसकी फोर्स और ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी उस जगह जाने के लिए जहां उसको अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं, जैसे आपने अभी आप में से किसी पेरेंट्स ने पूछा था जंक का, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपना थोड़ा जंक बिल्कुल ही आपने क्लीन कर दिया तो आपके पास कुछ कहने की जरूरत नहीं, बेटा मैं देख लो मैं कितनी हेल्दी हूँ, तो वो धीरे धीरे उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। हो सकता है वो 1-2 दिन लगाए पर वो क्विट करेगा। बट आप भी खुद खा रहे हो और उसको मना कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो और उसको कह रहे हैं तू प्राइम मिनिस्टर बन जा, पॉसिबल नहीं है। तो पेरेंटिंग तब डिफिकल्ट होती है जब मैं खुद को नहीं समझ रही होती। पेरेंटिंग बहुत इंजॉयबल है, पेरेंटिंग बहुत, इवन मतलब आप कहते हैं एक ही फैमिली में आपको फ्रेंड्स कहें, रिलेशन कहें या जो भी समथिंग, जैसे आपने भावना मैम ने बोला कि जो भी आपका फ्रेम है, अगर आपका, हाँ जी क्या बोले, मेनली क्या होता है, जो भी आपका फ्रेम है, अगर आपके सेम फ्रेम के लोग आपके घर में रह रहे हैं तो आप बहुत स्ट्रेंथ, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आत्मबल, जो आपकी लाइफ पर्पस को भी कंप्लीट करता है। तो इस टॉपिक पे तो डन हो गया, इतना ही बोलना है। बाकी सबकी जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आई एम रेडी फॉर। Okay. Parents, you can write your questions, whatever you have understood. क्योंकि मैडम ने the ball parents के कोर्ट में कर दी, that Exactly. change ourselves, and that's a very beautiful thought, Dr. Savita, that how can we expect what we cannot do, and how can we expect
what we do not have. So you have to be the role model for your children. And I'll say there is a paradigm shift in the thought process you have brought. Exactly. तो इससे काफी कुछ चीजें तो काफी अपने आप में ही क्लियर हो जाती हैं. और you started very beautifully. The time is not uncertain. Actually, the life is uncertain. Exactly. तो उस uncertainty में जितना भी time अच्छा निकल जाए और बेहतर निकल जाए, so best. So that is the beauty. So very beautifully portrayed, and that the shift in the thought process, I really liked it. But we still have confusions because this is what we have heard for the first time. So please, you can write your questions, and Akanksha, if you have received, please read out the questions. Yes, ma'am, I have received. So first of all, I would like to thank so much, ma'am. So much thank you for sharing your thoughts and knowledge on this topic with us. And yes, I have received few questions. So one by one, I'll be sharing that with you. This question is, ma'am, from Manvik's parent. How to reduce the screen time now that classes are online and then a lot of homework too. So because nowadays classes are being online, so parents have this query that laptops, mobile screen, they have so much high resolution. So eyesight effect हो रही है, बच्चे complain करते हैं हमारा headache है, मुझे नहीं पढ़ना. But so how to handle this situation? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बोला कि सिंपल है, अगर अभी मुझे आईज का मेरा प्रॉब्लम हो रहा है या मुझे हेडेक हो रहा है तो नेचुरल सी बात है कि जैसे मैं फोकस कर रही हूँ तो राइट इन्फॉर्मेशन फिर अगेन एक आता है जिसको हम कहते हैं ये तेज तत्व. आईज का है ये हमारा लाइट. ये भी लाइट अगर आप डार्क कर दें अभी रूम को तो आपको दिखाई नहीं देगा. सिंपल. तो यहाँ से भी एक लाइट जनरेट हो रही है और यहाँ से भी एक लाइट जनरेट हो रही है, तभी वो रिफ्लेक्शन आके हमें कोई भी चीजों को हम देख पा रहे हैं. तो जब बहुत लंबे टाइम तक लाइट से रिफ्लेक्ट होती रहती है तो हीट डेवलप होती है. तो हमें सॉल्यूशन पे काम करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा, रात में जब हम सोते हैं तब और जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें पहले फिजिकली अपने आप को इम्प्रोवाइजेशन फॉर्म में ले जाना है. जब हम रात में सोते हैं तो ऑलवेज हमें क्या करना है, पानी का सिप मुंह में लेके ब्रीथ करना है. एक पानी को ग्लास में लेंगे, उसमें अफर्मेशन डालनी है, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, उसको पीना है और मुंह में रखना है. अभी मुंह में रखना है और ब्रीथ करना है. तो उसका टेम्परेचर आपके सलाइवा के साथ मिलके, और सलाइवा अल्कलाइन होता है हमारा, तो आपका डाइजेशन जो उसका जितना सलाइवा आपका अल्कलाइन फॉर्म अंदर जाएगा तो आपकी एसिडिक फॉर्म सबसाइड हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं हीट. एसिड इज अ हीट. तो वो हमारा हीट सबसाइड हो जाएगा पहला. और अगर हम रेगुलर इसको रूटीन में करते हैं, बहुत सिंपल है पहला. दूसरा जिसको हम कहते हैं जो थॉट जनरेट हो रहा है, जैसे आप पॉट के पास वाला पानी इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि थॉट इज कमोड, एक्सक्रीटरी सिस्टम वहां पे हमारे यूज करते हैं हम, तो हमें वो अच्छा एनर्जी नहीं दे रहा है ना. तो वो एक थॉट है जो हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर रहा है या एनर्जी को थोड़ा नेगेटिव फॉर्म में ले जा रहा है. तो जब आप अफर्मेशन देंगे कि आई एम हेल्दी, मजा मजा, तो वो जो पानी है उसकी कंजप्शन जो है बहुत स्ट्रांग है, उसकी मेमोरी जो है वो बहुत स्ट्रांग है. आप जब उसको पीते हैं तो हम ये बोलते हैं पानी ही है ऑलमोस्ट हमारे अंदर 70%. ठीक है. तो इसको 70 to 80%, कई लोगों में तो 75 होता है, 70 अकॉर्डिंग टू मेडिसिन 80 तक भी होता है कई लोगों में, है ना. पानी की कंजम्पशन के ऊपर है. तो जो आप बाहर से देते हो, तो जैसे पानी में हम एक ड्रॉप डालते हैं, वो पूरा पानी ऐसा हो जाता है जैसा कि आप ड्रॉप डालते हैं जिस भी कलर का. तो सेम जो भी पानी आप इनटेक कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, इसीलिए पहले जो लोग बोलते थे पानी को बैठ के बहुत प्यार से पियो, तो हम बोलते थे जैसा पानी वैसा वाणी. तो मतलब आप वैसे ही हो जाओगे. क्यों? क्योंकि आपके अंदर आपका मन, अब आप जैसे मैंने कहा मैं रिसीव कर रही हूँ सारा, तो मुझे कभी भी कोई भी तैयारी नहीं करनी पड़ती. जैसे नवीन जानते हैं सर्वोदय फैमिली का, मैं मतलब क्या कहूँ मैं कि मेरे कोर कहूँ या हार्ट कहूँ, लीवर कहूँ, सबसे मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि किसी ने मुझे अडॉप्ट नहीं किया. मैं अपोलो में रही कुछ टाइम, 3 महीने में उन्होंने मुझे, क्योंकि उनका एक सेट पैटर्न था,
जिस सेट पैटर्न में मुझे लगता था कुछ कंप्लीट ही नहीं हो रहा, और सर्वोदय ने मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है कि जो मर्जी आए करो, बस बढ़िया होना चाहिए। तो ये जो बढ़िया है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, सचमुच बहुत बढ़िया होता है। आप कभी मिलोगे, जो भी कोई भी डिजीज हो, मैं ये आपको रिटर्न में दे सकती हूँ, कोई भी डिजीज हो, नॉट, जबकि साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसमें कोई ऐसा फॉर्म नहीं है कि जहाँ डिजीजेस जो हैं वो आपको ना केवल क्योर बल्कि इम्प्रूव भी नहीं कोई ऐसा होता है, बस जस्ट आप मेंटली ईज होते हो। बट मैं ये आपको शॉर्ट बोलती हूँ कि कोई भी डिजीज हो आपके पास, ओवरकम हो जाओगे, आप क्योर हो जाओगे, आप हेल्दी हो जाओगे विद इन 2 सिटिंग। ठीक है, तो अभी हम बात वापस टॉपिक वहां लाते हैं कि पहले आपको पानी पीना है विद पॉजिटिव अफर्मेशन, और जो भी आपको चाहिए, पर डे का आपका चेंज होता है थॉट। एक और बात, कभी आप अपने आप को नोटिस करो, मुश्किल से 2 घंटे आपका एक जैसा मेंटल टेम्परामेंट रहता है, आपका वापस चेंज हो जाता है। और हम बच्चों से या किसी दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तू तो अभी ये बोल रहा था, अभी तू ये बोल रहा है, तेरा तो कुछ पता ही नहीं चलता है, तू तो बहुत ही चेंज हो जाता है, तेरा तो कोई सेटल ही वो ही नहीं, बिहेवियर ही नहीं है। बट जैसे हमने कहा, लाइफ इज अनसर्टेन, टाइम इज अनसर्टेन, हम खुद भी हर मोमेंट में चेंज हो रहे हैं। आपको पता है, जब कभी किसी छोटे बच्चे को देखा होगा जो आप थी, तो कोई जिसने सिर्फ आपको 1 महीने का देखा था, वो आज देखेगा, वो कहेगा वो लड़की कहाँ गई, आप भी वो नहीं हो, आप वो हो ही नहीं, बस जस्ट हम कैप्चर करते हैं मेमोरी। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे जन्मों की मेमोरी है, हम अभी क्या है हमें पता नहीं। अगर हम आज अवेयरनेस से देखते हैं तो हमें पता चलेगा, ओके मैं ये हूँ। नहीं तो हम बिना अवेयरनेस के, बिना मेमोरी के, आंखें बंद करके जैसे चलते हैं ना, बिल्कुल वैसे चल रहे हैं। इसीलिए मजा नहीं है लाइफ में, इसीलिए इतने दुख हैं, इसीलिए इतना कंजक्शन जिसको हम कहते हैं ना, कॉम्प्लिकेशंस, वो हो रखा है। तो अब अगेन हम अपने बैक उस पे चलते हैं टॉपिक पे। पानी में अफर्मेशन देंगे, उसको पिएंगे तो सलाइवा, और ऑलवेज आपको सलाइवा को, अभी भी आप बैठे हैं, आप सलाइवा जितना मैक्सिमम अपने आप को दे सकते हैं, अपने स्टमक को, उतना बहुत बढ़िया। ये आपका नेचुरल अल्कलाइन फॉर्म है। ये आपके, इसीलिए आपको जब खाना खाते हैं तो इसीलिए आपको बहुत सारा चबाने के लिए बोला जाता है, सो दैट कि जो भी आपके जूसेस हैं उनके साथ आपके सलाइवा की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो, मैक्सिमम वो जनरेट हो सलाइवा। तो जब वो खाना अंदर जाएगा तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में जाएगा, तो आपको एसिड क्रिएट ही नहीं होगा। और एसिड क्रिएट नहीं है तो बॉडी एकदम परफेक्ट। आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो हेडेक है, माइग्रेन्स है, सब एसिडिक फॉर्म्स हैं। एक भी ऐसी चीजें नहीं, रेयरली जिनको पेन कहते हो आप, वो भी जब हम कहते हैं एयर थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ना, एंजाइटी मिक्स हो जाती है एसिड में, तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी में, जो पेन एक साथ है ना आपको जगह जगह। अदरवाइज सारी प्रॉब्लम आपकी एसिड से है। तो अगेन बैक टू अपने पॉइंट पे, अफर्मेशन लेंगे, पानी पिएंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो गट क्लीन होगा। ठीक है, तो जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो एक तो आपको दांत बंद करके हल्का सा स्मूथ, हल्का दांतों को ऐसे करके आपको बैठना है और ब्रीथ इजी इजी, मतलब अपने आप को इजीनेस में डालना है, जैसे कि ये सबसे जन्नत में बैठे हुए हो आप। दूसरा, जब आप वॉश बेसिन में बैठते हो तो मुंह के अंदर पानी लेना है आपको, हल्का पानी लेने के बाद अपने हाथ से पानी मुंह में पूरा फुल भर के रखना है। अपने हाथ से आईज को ना केवल पूरा बंद करना है, ना पूरा खोलना है, हल्का सा, जैसे कहते हैं ना, अभी आप आगे से देखोगे तो मेरी आईज बंद है, बट बंद नहीं है, हल्का पलकों को गिराना है, जैसे पोइट्री में कहते हैं ना, पलकों को गिरा दो। तो पलकों को गिराना है, और आपको बीच में, जिसको हम पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड का पॉइंट मानते हैं, यहाँ ये आपका थर्ड आई जिसको हम बोलते हैं, ये जो थर्ड आई है, इसके ऊपर काफी ऑलमोस्ट 3 to 5 टाइम्स आपको ठंडा पानी हिट करना है, और इससे आपके रेटिना की हीट स्लो डाउन हो जाती है। और अब ये मैं अभी डे का दिन, जिसको हम कहते हैं रूटीन से ही बता रहे हैं, कि उसी में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फिजिकल उसमें। और दूसरा, फिर आईज में मारना है और पानी को स्प्लिट कर देना है, पानी को बाहर निकाल देना। आप देखोगे काफी गर्म हो जाता है वो पानी, जब आप निकालते हो वो सारा उसमें आ जाता है।
ENT आप पता है ना, सारे पैसेजेस आपके मिले हुए हैं, ये हम कुछ ऐसा नहीं बता रहे। बीइंग ए डॉक्टर मेरी चेयर है तो मैं कुछ ऐसा अभी वो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल वाला नहीं बताऊंगी। दूसरा, सेकंड, जब आप नहाते हैं, अब सबके यहाँ शावर है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज शावर को अवेल करती हैं, शावर चला के आपको उसको भी एक अफर्मेशन देनी है, आहा मजा आ रहा है, कितनी मजेदार लाइफ है। अगेन वो पानी जिसको हम कहते हैं शुद्धिकरण, ये फील कराइए कि मैं पूरा इससे पूरा क्लीन हो रहा हूँ। तो ना केवल आपकी फिजिकल इम्प्योरिटीज, अगेन हम पीछे जाते हैं अपने पुराने टाइम में, तो वहाँ हाथ मुंह जिसको हम कहते हैं आचमन करना, वह हमेशा खाना या जब भी बाहर से कोई पर्सन आता था वो ऑलवेज अपने पैर और हाथ धोता था, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी वो यहाँ से रिसीव करता है। और बालों पर हल्का सा पानी को छींटा मारना, जिसको हम ये बोलते हैं कि बाहर के जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, एनर्जीज हैं, वो सब कुछ ईज आउट हो जाती हैं। तो यहाँ जब आप बाथरूम से बाहर निकलेंगे तो ऑलमोस्ट आप हैप्पी कंडीशंस, जिसको हम कहते हैं हैप्पी फॉर्मेशन में निकलेंगे। तो जब आप बाहर आओगे गुनगुनाते हुए तो एटमॉस्फेयर कैसा होगा? इजी रहेगा। तो अब आप जब बैठोगे, अगर पेरेंट्स भी थोड़ा हैप्पी फॉर्म में होंगे तो बच्चे को कैसे बोलेंगे? बच्चे को भी सेम करना है। और यहाँ टीचर्स को भी हम बोलेंगे, आपको भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने कई बच्चों से भी सुना है कि बीच बीच में आप लोग थोड़ा सा उनको एक्सरसाइज करा दो, मतलब मजा आ रहा है और फिर से पढ़ेंगे। तो थोड़ा फन एलिमेंट उसमें हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं। बच्चों को आप कैसे कर सकते हैं कि बच्चों को सेल्फ कंट्रोल, किसी ने क्वेश्चन पूछा है? नहीं। बच्चों को तो कहते हैं खिलने दो। अभी पेड़ को आप बोल दो कि सेल्फ कंट्रोल में बढ़ना तू। बोनसाई, मैं फेवर में नहीं हूँ बोनसाई के। अगर बोनसाई में हम पूरे चले गए तो ये जो छाया है और जो खूबसूरती है नेचर की, वो कहाँ है? अगर हमने बोनसाई में कन्वर्ट कर दिया सारी नेचर को, कैसी लगेगी नेचर? मुझे तो नहीं लगता वो खूबसूरत लगेगी।